हेलो। आवाज आ रही है? कल स्नैप पर खुल ही नहीं रहा था। क्या हो रहा है सर? स्नैप होमवर्क में आजकल दिक्कत चल रहा है, कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। सर कल आपका क्लास भी नहीं हो पाए थे। Last class we have studied about the instantaneous speed. Instantaneous speed. What do you mean by instantaneous speed? Define instantaneous speed. Speed of an object at any start. Speed of an object at any instant. Mathematically, ds by dt. what are the mathematical by expressions dt. for ds? ds by Sir, dt. V equal to ds upon dt. Very nice. V equal to ds upon dt. This is expression for the instantaneous speed. Good. Speed is a what type of quantity? Scalar quantity. Speed is scalar quantity. What is the basic difference between the scalar quantity and vector quantity? Vector quantity Sir, scalar has only quantity has direction. no direction, but vector quantity have direction. Good. What do you know by magnitude? Magnitude Numerical value. means value or size. Sir, numerical. Yes. Numerical value plus unit. Sir, numerical value into unit. What is the basic difference between the distance and displacement? Distance can never be Total distance covered by an object and displacement is the total as well as 0, and distance is scalar by displacement is vector. सही है, बिल्कुल सही है. Yes. सही है. Displacement may be positive, negative, and zero, but distance cannot be zero. Now next topic. हम लोग ये टाइप ऑफ स्पीड पढ़ लिया था ना. Now next is the velocity. The change in displacement per unit time is called velocity. Displacement per unit time. Displacement per unit time is called velocity. Displacement per unit time is called velocity. V equal to S upon T. Here V equal to D upon T. कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग. V equal to D upon T या S upon T. It's SI unit, meter by second.
Dimension formula m naught L1 t to the power minus 1. It is a vector quantity. It is a vector quantity. The velocity displacement per unit time is called velocity. It mathematically it is expressed as v equal to s upon t या v equal to d upon t. Here s and d both are the same things. Both represent the displacement. SI unit meter per second. Dimension formula m naught L1 t minus 1. It is a vector quantity. नोट करिए. No, sir. Yes, sir. सर थोड़ा साइड होइए ना. हो गया सर. हो गया सर. हो गया. यस Yes, सर हो sir. गया. Uniform velocity, again it is very clear from the name. If a body covers equal displacement in equal interval of time, then the velocity is called uniform velocity. Equal displacement in equal interval of time. Uniform velocities. If an object covers equal displacement in equal interval of time, then the velocity obtained by the body is called uniform velocity. Non-uniform velocity, again it is very clear from the name. If a body covers equal displacement in unequal interval of time or vice versa. If a body covers equal displacement in unequal interval of time or vice versa. Equal displacement in unequal interval of time or vice versa is called non-uniform velocity. If a body covers equal displacement in unequal interval of time, then the velocity is called non-uniform velocity. Average velocity, the ratio of total displacement by total time taken is called average velocity.
if initial and velocity is given, if initial and final velocity is given, then average velocity equal to u plus v by 2. Recording in progress. Which is the average velocity? Instantaneous velocity. Yeah. If initial and final velocity is given, then the average velocity is written as u plus v by 2. Here a stand for the, here a for, sorry, u for initial velocity, v for final velocity. Instantaneous velocity, v equal to ds upon dt. The rate of change of displacement per unit time is called instantaneous velocity. The rate of change of displacement is called instantaneous velocity, ds upon dt. इस विकिनी में कोई प्रॉब्लम है? सर वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है? हाँ, क्या बोले? सर वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है? आवाज नहीं आ रही, तो क्लियर नहीं समझ पा रहे क्या पूछना चाह रहे हैं। सर वेरिएबल वेलोसिटी पूछ रहे हैं। वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल यस सर। वेरिएबल पूछ रहे हैं। यस सर। वेरिएबल वेलोसिटी पूछ रहे हैं आप? यस सर। यस सर। वेरिएबल वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही बोलते हैं। नाम से क्लियर है ना, वेरिएबल जो वेरी कर रहा हो। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की वेरी कर गया ना। यस सर। हेलो, यस सर। नहीं समझ में आया? आ गया सर समझ में। समझ गए ना? वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जो वेरी कर रहा हो, है ना। तो वेरी यहाँ पे क्या करेगा? वेलोसिटी में आइदर डिस्प्लेसमेंट वेरी करता होगा या टाइम करता होगा। क्या यही तो चीज यस सर। कर रहा होगा कि जैसे सपोज दैट हमें 2 किलोमीटर जाना है, हाफ किलोमीटर मैंने 5 सेकंड में कवर किया, नेक्स्ट में हम 6 सेकंड 1 सेकंड में किया, फिर नेक्स्ट को 4 सेकंड में कर लिया, लास्ट में फिर 2 सेकंड में किया। तो हमेशा वो चेंज कर रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल है बट टाइम यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसे हम वेरिएबल बोलेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके। सर
acceleration the change in velocity per unit time, change in velocity per unit time is called acceleration. It is denoted by small a. It is denoted by small a. In physics, there is a difference between the small a and capital A. स्मॉल a and कैपिटल A में ये दोनों दो चीज को रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स में, बता सकते हो? कैपिटल ए एम्पियर, यस सर। स्मॉल a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल A क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यही चीज हम करंट में चलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट में वहां ए लिखा रहेगा तो वो हम एम्पियर को डिनोट करते हैं। Whereas in general mechanics, the capital A represent for the cross sectional area. इसलिए small a और capital A में ध्यान दीजिएगा। So acceleration, the change in velocity per unit time is called acceleration. It is denoted by a. So mathematically a equal to v minus u by t. Change in velocity per unit time. Its SI unit meter per second square. Dimensional formula m naught L1 p to the power minus 2. Dimensional formula m naught L1 p to the power minus 2. SI unit meter per second square. It is a vector quantity. It is a vector quantity. Instantaneous acceleration is given by a equal to dv by dt. A equal to dv by dt. This is the instantaneous acceleration. The acceleration at any instant. या acceleration को हम calculus method में a equal to dv by dt लिखते हैं। dv by dt का मतलब क्या हुआ? The rate of change of velocity. क्योंकि d by dt का मतलब ये होता है the rate of change. तो d के साथ यहाँ v जुड़ा हुआ है, तो हम इसे बोलेंगे the rate of change of velocity. एक और बच्चा मीटिंग रूम में है भाई। ये दिक्कत है यहाँ पे तक में? नो सर। यहाँ तक में किसी को तो समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। The negative value of acceleration is called negative value of acceleration is called retardation. The negative value of acceleration is called retardation. नोट कर लिए हैं?
Yes, sir. Yes, sir. कर दो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलिए क्या बोलना चाह रही है। Yes, sir. यस आदित्य क्या बोलना चाह रही है बोलिए। हेलो इरेज कर दीजिए सर। इरेज कर दो ओके। There are four equations. पहला है velocity time relation. Second one is the position time relation. Third one is the velocity displacement relation. And fourth one is the position of an object in nth second. इसमें से कितने इक्वेशन ऑफ मोशन से आप फैमिलियर हैं? सर चारों से। सारे इक्वेशन से। यस सर। गुड। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? वेलोसिटी टाइम रिलेशन को कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? फर्स्ट इक्वेशन। हेलो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? यस सर। वेलोसिटी टाइम रिलेशन को कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? उस इक्वेशन का नेम क्या है? V is equals to U plus AT. सही है, टाइप V इक्वल टू U प्लस AD। पोजीशन टाइम रिलेशन का इक्वेशन क्या होगा?
S is S equal equal to to UT UT plus half plus AT half square. AT square. Plus half सही AT है। square. x equal to ut plus half at square. Velocity displacement V square minus V U square is equal to equals 2AS. to U plus 2 square AS. plus 2AS. last one का SN SN equal by to 2 U into plus 2n A by minus 2, 1. 2n minus 1. सही है, गुड वाह। ये सब अप टू क्लास ये 9th में आपने पढ़ा था या 10th में पढ़ा था? 9th. 9th. 9th में 9th पढ़ा। में. 9th में चारों इक्वेशन पढ़ना था लास्ट वाला भी। No sir. तीसरा पे पढ़ रहे थे. ओके, तो 9th में जो आपने पढ़ा था वो दो मेथड से पढ़ा था आपने ना, जनरल मेथड पढ़ा होगा और एक ग्राफिकल मेथड पढ़ा होगा। Yes sir. Yes sir. लास्ट वाला मुझको नहीं लगता आपने सर पढ़ा होगा शायद। नो सर। नहीं ना, नो सर। चलो तो यहाँ पे हम जो है आपके लिए ग्राफिकल मेथड तो नई चीज नहीं, आप पहले पढ़ चुके, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलस मेथड भी बताएंगे और जनरल मेथड बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट 3 इक्वेशन जो है, ओके। फर्स्ट 3 इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से आप प्रैक्टिस करेंगे। चारों इक्वेशन को हम, फोर्थ इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड नहीं होता है, तो चारों इक्वेशन को हम लोग जनरल मेथड से डिस्कस करेंगे और कैलकुलस मेथड से डिस्कस करेंगे। एग्जाम में जो आता है वो कैलकुलस मेथड से ही आता है। नोट कर लीजिए।
हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। हो गया सर। हो गया सर। किन्हीं को समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। सर ये सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है ना? यस। सर ये सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है ना? हाँ, क्योंकि वेरिएबल टाइम है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है जी। यस सर। स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना। यस सर। सर एक बार कैलकुलस मेथड समझा दीजिए। समझा देते हैं, बिल्कुल समझा देते हैं। ये तो मैं चाहता हूँ कि आप पूछिए, सर नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो वेट करता हूँ आपका। लिमिट भी समझा दीजिएगा इसमें। ओके, तो एक्स कैलकुलस मेथड में सबसे पहली बात है कि जो v = u + at है, तो अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए। नहीं, इसे हमें प्रूव करने के लिए हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना होगा, ये पहला चीज हमें पता होना चाहिए। तो एज पर वी नो दैट ये हमें ये जो इक्वेशन है v = u + at, ये वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में रिलेशन है। ये रिलेशन है जी, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। यस सर। तो हमें अपने आप को रिकॉल करना होगा कि ऐसा कौन सा इक्वेशन है जहां पर वेलोसिटी टाइम आ रहा हो। तो वेलोसिटी टाइम के साथ में जो चेंज कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा a = dv/dt। इसके अलावा दूसरा इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर हमें वेलोसिटी टाइम को प्रूव करना है। a = dv/dt, ये इसको सिंपलीफाई कर ये आ गया। अब करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट का मतलब समझ में आया? नो सर। नो सर। प्रॉपर लिमिट का मतलब है कि जिसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका वैल्यू कहां से कहां लेंगे। तो फिर यहाँ पे ये बात होती है कि हमें इंटीग्रेट किसे करना है। जैसे थोड़ी पहले किसी ने कहा था सर एक्सेलरेशन को आपने यहाँ पर कांस्टेंट लिया है, तो मैंने बताया था हाँ। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन वेरिएबल है और कौन कांस्टेंट। तो मैंने फर्स्ट डे जब इंटीग्रेशन क्लास आपका ले रहा था, मैंने जो बताया था आपको, तो उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि डी के साथ जो जुड़ा रहेगा वो वहां पे वेरिएबल होगा। तो ये इक्वेशन में जो वेलोसिटी इक्वेशन जो हमारा है, वेलोसिटी टाइम, इसमें वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, नहीं इनिशियल से लेकर फाइनल पे जा रहा है। उसी से टाइम के रेस्पेक्ट में भी चेंज कर रहा है, यानी टाइम भी यहाँ वेरिएबल है। वेलोसिटी तो वेरिएबल है ही और टाइम भी वेरिएबल है। जैसे मान लो t1 सेकेंड में इनिशियल वेलोसिटी u1 था और t2 सेकेंड में उसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। तो अब यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि वेलोसिटी भी u से v हो गया और टाइम भी t1 से t2 हो गया, तो यहाँ टाइम भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट। अब इसमें जब लिमिट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ वेलोसिटी का लिमिट लिया मैंने u और v, यहाँ टाइम का लिमिट लिया 0 से t। हम 0 नहीं भी ले सकते थे, हम t1 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 0 के अलावा t1 भी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो t2 - t1 = t लेते हैं। अब यहाँ पे एक और dv का इंटीग्रेशन v होता है और dt का इंटीग्रेशन t होता है। एक कांस्टेंट इसको बाहर कर दिया, सिंपलीफाई कर दिया, ये इक्वेशन आ गया। अब बोलिए इनको और कहाँ नहीं समझ में आया? सर फिर से समझा दीजिए ना एक बार। क्या अब क्या सर एक बार दोबारा समझा दीजिए ना। किसको? कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड्स।
कहाँ पे कैलकुलस मेथड कहाँ पे दिक्कत हुई ये बताओ पहले। सर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड के बाद। अच्छा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड के बाद। इंटीग्रेशन का क्लास किए थे आप? यस सर। तो अब यहाँ पे हमने लिखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इक्वेशन 1। अब देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ डीबी को इंटीग्रेट कर दिया, उसी तरह से यहाँ एबीसी को इंटीग्रेट कर। अब यहाँ पर डी किसके साथ जुड़ा हुआ है देखो तो, ठीक है सर। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? डी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? टी। टी। अदर देन टी जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? कांस्टेंट होगा सर। कांस्टेंट होगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ टी वेरिएबल है। तो कांस्टेंट यहाँ पे टी के अलावा और क्या है? यहाँ पे देखो तो ए ए है, तो ए को बाहर कर दो। एक्चुअली इसको हम डायरेक्ट स्टेप में लिखते हैं, इसको हम एक स्टेप और आगे करते हैं, इस इक्वेशन को हम और करते हैं। dv इक्वल टू u, v इक्वल टू v, और इसको a dv, ठीक ना? अब dv का इंटीग्रेशन हो गया v, इस इक्वेशन को हम यहाँ ले गए। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पलटिए, जो मैंने लिखा था पहला, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू क्या था? x था ना? यस सर। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? वी होगा। v और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी t होगा। तो यहाँ पे मैंने dv का इंटीग्रेशन v आ गया और dt का इंटीग्रेशन t आ गया। अब यहाँ पर हम लोग फिर क्या करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। यस सर। यस सर। या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप। क्या अभी भी दिक्कत है? नो नो सर। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके, सारे बच्चों ने नोट कर लिया है? Yes, sir. यस सर। बोर्ड में प्रिंट कर रहा हूँ।